All right, guys. So first of all, welcome everyone to this webinar. So I request all of you to join our channels. Okay. So these are the links. I hope my screen is visible to everyone. And you can see these links, the YouTube channel link, Discord channel link, and Telegram channel links. Kindly join these channels so that you can get timely updates about our new videos, new learning, and all the new features. We will also be posting these links in our YouTube channel video. Okay. Second, that is one thing. Now, second thing, apart from these daily webinars, if you want to learn about Go charting and the different concepts, okay, so you can go to Go charting channel and then you can go to different playlists. There are different playlists. So, you can start with like order flow, volume profile, market profile, trades and execution, different profile, different playlists are there. Okay. And if you're very new to the platform, so someone who is very new to platform, he can start with learn Go charting in Hindi or Go charting primer series in English. So both languages we have. I have also made a series like, with all the tools. Basically, if you go to Go charting and you find different tools like delta bars, and if you see bar statistics, so you'll find so many different options, right? So this playlist explains all those features over here. Okay, so you can also go through this playlist, and the same playlist we have created in English. Okay, so these are few things I just wanted to share so that everyone knows how to start with Go charting. Now we have also started the same series on which you are right now taking webinar. So we'll be discussing a daily market analysis. All right. So now let me start with today's market analysis, what has happened and how we could have traded, guys. Okay. So my style of trading is I take the help of four things. I don't take only order flow. Definitely order flow is one of the best things in my trading, but I take help of four things. So first thing is drawing the levels. So I have explained it in one of the previous webinar, and if you are not if you don't know how to do that, I have also explained this in this video. Okay, so we have this video, how to draw levels with auction market theory rules. Okay, so I can copy this link for you guys and I can paste it here in this chat box. So let me paste it over here. Okay, so this is the video, guys. Please ignore any background noises. So okay, so this is how. So first thing what I do is I try to plot the levels. So everyone has different ways of plotting levels. I keep on coming with questions like, should we plot market profile or should we plot the volume profile? Okay, so you can choose anyone. Most all of them give almost the same results. Okay, so suppose what we have done is we have plotted market profile in this range. Okay, okay, so I'd like to trade based on the value area. Okay, so now how I draw the level. Okay, you see this is a proper D-shaped profile. Can you see that this is a proper D-shaped profile? So I plotted this as one value area. This is value area high and value area low. Below also you will have a very small D-shaped profile. So we have plotted value area high and value area low. Then again we have D-shaped profile. So this is another value area. Now according to auction market theory, when market is inside the value area, it will keep on going from value area high to value area low. And if it is trying to enter to another value area, let it enter properly. So for example, here if you see today market has came down, so here below we have another value area, and if market is trying to enter into this value area, let it enter properly, then we can take based on pullback. Okay, so I'm coming to that. So first rule was draw the levels. Now second rule is yeah, I hope it is visible. Now second rule is you have to look at the strength of the delta. Okay, so you have to look in which direction the delta strength is there. Okay, so you have to take trade in the direction of delta. That is point number two. Point number three is look at the risk reward. Say for example, let me just make it first candlestick. Now suppose you are taking a trade over here.
Okay, so this is a level below. You know that there is a level below. Okay, so of course you should never, run behind the market. So if the market is falling and you are not taking trade over here, but here now your patience is lost and now you are taking trade at this level. So this level trading, taking trade at these levels, near the levels, is not advisable at all. So try taking trades when the level is far, so that you can have a good risk reward. Okay, that is rule number 3. And rule number 4 is always try to take a trade on pullback. Guys, please wait for pullback. This has improved my trading, in a very good way. Okay, so once you take the trade based on pullback, that is a that you get the best trade then. Now let's try to analyze today's market, how we could have traded. And so, and yeah, then you have the VWAP. Okay, so now all the rules which we apply on the value area, okay, the same rules can be applied on the daily VWAP. So why daily VWAP? Guys, see, as I have shown you here, these are the levels based on the previous day trading. Okay, these are not the current value area, these are previous value areas. But market, see, it will be, not right to think that market will always keep on moving inside this value area, the previous value area. Market will keep on forming new values every day. Okay, so you have to be in sync with the new values where market is making right now. Okay, for that we need to understand today's value, and for that we apply VWAP. Okay, so another rule is VWAP. So you have to take trade when VWAP is in slope. If VWAP is in slope and you are taking that trade, it will be very high chances of success, because slopey VWAP, it indicates that the market is trending. So now 4 rules. What are the 4 rules? The level should be far below, VWAP should be in slope, take trade based on the pullback, and look at the strength of the delta. Now let us apply these 4 rules and let us understand how we could have traded today. And also we will see the order flow as well, go inside the candle. So sometimes what happens, if you want to keep a bird's eye view, you can open order flow in a different window or in a different tab, and keep on looking at the what is happening right now. Okay, so yes, so now guys, let us try to analyze it one by one. See what has happened here. Market has opened, okay, and it has gone above. Okay, so it has gone above. So now if you see, yes, so it has gone above. Now you have to wait for a pullback. So here there was a pullback. If you want to enter after this pullback, you can enter and take up to here. But what has happened, guys? Now you see this market has again entered into this value area. So now this could have been your stop loss. Okay, for sure, because if you enter here and market comes down, this could have been your stop loss. But now see here what is happening here, guys. So first of all, let me also tell that when the market is opening inside a value area, so this is our value area. If you see it properly, this is value area low and this is value area high. So once market has opened inside value area, what is our hypothesis? Our hypothesis is market will go to value area high or to value area low. Okay, now market has failed going up. Market has started going up, but it has failed. So once it has failed, now what will we see? Now here if we see, market has entered into the current day value. Okay, it has entered again. Now this is our stop loss, or you can say cost to cost basis you have exited. But here now you see market has again came outside this value area with a good negative, what you say, negative delta. And now you see the pullback. And if you see this pullback or you see this pullback, and you try to compare these candles with this candle, so here if you see, we kept on getting sellers. Okay, and where this market is what this is doing, this is doing a pullback. Okay, so now this is a weak buyer's pullback. Okay, so this is a weak buyer's pullback. There is no buyer, but we are getting pullback. We also call it sometimes delta divergence. Okay, so these are the trades where you could have entered. Why?
See here, all of our four rules are getting applied. First of all, we can see there is a nice slope. Okay, the slope is visible for sure. Okay, at least here you can see the slope is there. Okay, see what happens, guys, when this candle goes up, the slope is not visible. You may not understand that the slope is there, but here you can see. That's why I keep on telling that wait for a pullback. So once you wait for a pullback, the slope is visible. So first condition, the slope is visible. Second condition, the level is here. Okay, so you can easily target up to here, so you can get a good risk reward. Third is you have waited for a pullback. And fourth, see the strength of the delta, it's very low to the upside. And here market has gone to upside. And then you can, you see the strength has started coming again. And then these are the moves you can easily capture. Okay. So if you follow these four rules, that's what that is what my style. Again, if you want to do the order flow analysis, you can go to, these, candle by candle analysis. That is also a very good idea, because here you can enter with very small stop losses by using order flow candles. Okay, so I think Nikhil will talk about these numbers, smaller numbers in some times. So I think this is what I like to trade. This is how I trade. And if you have any doubt, we will take after end of the session. I think let Nikhil take over. ओके, हेलो एवरीवन। सो आज देखते हैं ऑर्डर फ्लो में निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे, कहाँ पे क्या कुछ हमें देखने को मिला, कहाँ पे बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला, बायर्स और सेलर्स का इंटरेस्ट कहाँ पे ज़्यादा था, कहाँ पे कम था, कहाँ पे दोनों का ही इंटरेस्ट नहीं था। एक काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि आपका फुटप्रिंट सेटिंग शेयर करो। ओके, कैसे हम डेल्टा को अप्लाई करें, कैसे हम लगाएं। सो ये है नॉर्मल कैंडल्स। ओके, सबसे पहले चार्ट्स पे जाइए, क्लस्टर चार्ट चूज कीजिए। ओके, एंड देन यहाँ पे आपको फुटप्रिंट अवेलेबल हो जाएगा। क्लिक ऑन सेटिंग्स, और ये मेरा सेटिंग है। ओके, आप वीडियो पॉज करके मैच कर सकते हैं। ओके, एंड सेकंड, दूसरा जो चीज़ है कि डेल्टा कैसे अप्लाई करें। बार एफएक्स स्टडी पे जाइए, यहाँ पे बार स्टैटिस्टिक्स लिखिए, इस पे क्लिक कीजिए, ये आपको नीचे आ जाएगा। ओके, एंड देन क्लिक ऑन सेटिंग्स। ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ किया मैंने, तो यहाँ पे वॉल्यूम बंद हो गया। क्या क्या यूज करते हैं हम डेल्टा, मैक्सिमम डेल्टा, मिनिमम डेल्टा एंड क्यूमुलेटिव डेल्टा। कोट हाई कोट लो भी काफ़ी एडवांस चीज़ें, इफ़ यू वांट टू ट्राई इट यू कैन डू। ओके, सो सिर्फ यही सेटिंग्स हैं जो कि डेली लाइव सेशन के अंदर बार बार आपके सामने रिपीट होती हैं जब भी हम कुछ ऑर्डर फ्लो की बातें करते हैं। ओके, सो आज सबसे पहले लेवल्स देख लेते हैं, क्योंकि लेवल्स का पिछले 2-3 दिन से काफ़ी जिक्र हो रहा था। ओके, सो लेवल्स कैसे हैं, सिंपल सा है। काफ़ी दिन से निफ्टी 5-6 दिन से सिर्फ इसी जोन के ऊपर घूम रहा था। ओके, इसी जोन के ऊपर, और वॉल्यूम प्रोफाइल के बिहेव से देखें, सो ये देखो एक जोन बना हुआ था। ओके, वैल्यू एरिया का, ये वैल्यू एरिया हाई, ये वैल्यू एरिया लो, और ये विपॉक जोन बना हुआ था इस पूरे सेशन का 1 2 3 4 5 दिन से एक इसी रेंज के अंदर था। ओके, सो एक सिंपल सा था कि काफ़ी दिन जब भी एक रेंज के अंदर रहता है तो ब्रेकआउट का काफ़ी अच्छा प्ले रहता है। ठीक है, चाहे वो अगर बाय साइड ब्रेक होता है देन वी कैन एक्सपेक्ट सम अपसाइड मूव, अगर वो लो साइड ब्रेक करते हैं देन वी कैन एक्सपेक्ट सम डाउन साइड मूव। सो इसने जैसे ही लो साइड को ब्रेक किया देन हमारा नेक्स्ट लेवल ये निकल के आता है। ओके, अगला विपॉक जोन सिंपल है, अगला विपॉक जोन ये निकल के आता है। अब ये क्यों निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पे भी 3-4 दिन निफ्टी ने होल्ड किया था काफ़ी अच्छा, और ये उसका विपॉक जोन बना हुआ था। ओके, सो एक्सपेक्टिंग कि ये यहाँ तक टच करेगा। ओके, एक ये भी था, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा स्ट्रोंगर ये था, एंड देन इससे ज़्यादा स्ट्रोंगर ये था, क्योंकि ये एक ही दिन का था। विपॉक जोन सिर्फ एक ही दिन का बना हुआ था, और ये जो आप देख रहे हैं ये आज का भी इसमें ऐड हो गया ना, अगर इसको हटा दे तो यहाँ पे ये वॉल्यूम नोड नहीं बनेगा। ओके, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जैसे इसने लो ब्रेक किया कि ये इसको टच करेगा, लेकिन पता नहीं कब ये साइडवेज हो जाता है। सो ओके, अभी यहाँ पे देखते हैं कि ऑर्डर फ्लो ने हमें क्या कुछ कंफर्मेशन दिया
इन सिंपल सी लेवल्स के ऊपर। ओके, आज के दिन। ओके, सो ये पहला कैंडल है, ना ही तो पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव है, लेकिन इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं है कि हम कह सकें कि इस कैंडल को देख के हम अपना डायरेक्शन क्लियर कर सकते हैं, ऊपर जाएगा या नीचे। ओके, अगेन स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव कैंडल। ओके, यहाँ पे कुछ देखने को मिला। ओके, हल्का सा नेगेटिव, और ये नेगेटिव, हल्का सा नेगेटिव डेल्टा क्यों देखने को मिला था? ये देखो 15-15 के दो सेलिंग हुए हैं, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्गर वॉल्यूम नहीं है ये भी, क्योंकि ये देखो 14, 13, 11, 20, ये इससे बड़ा बाइंग बाइंग सेलिंग हो चुका है। सो ये जोन भी उतना नहीं निकल के आया। ओके, सो अभी जो जिसके अंदर काफी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला, डेल्टा देखने को मिला, वो देखने को मिला 10:05 के कैंडल के ऊपर। ये देखो -43 के का डेल्टा था। ओके, काफी अच्छा डेल्टा था। अभी ये देखो 10 बजे तक कितना क्यूमुलेटिव डेल्टा रहा हमारा। ओके, -26 का मतलब है कि 1 घंटा हो गया, और स्लाइटली बाइंग स्लाइटली सेलिंग स्लाइटली बाइंग स्लाइटली सेलिंग, ऐसे ऐसे करके सिर्फ 10 बजे तक का डेल्टा ही, पूरा क्यूमुलेटिव डेल्टा ही पूरा 26 के तक पहुंचा था। तो मतलब यहाँ से पहले तक तो बायर्स और सेलर्स का इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था। ओके, काफी कम वॉल्यूम था। ये इस कैंडल के अंदर काफी एक अच्छा ट्रांजैक्शन देखने को मिला, सेलर्स का इंटरेस्ट देखने को मिला। तो हमें डेल्टा देखने को मिला -43 के। अब ये -43 के का नेगेटिव डेल्टा किस वजह से देखने को आया? प्लीज एक्सप्लेन बिलो माय क्वेरीज, प्लीज शो डेल्टा। ओके दुर्गेश जी, आप कमेंट में इनको बताइए कि वो कैसे था आपका। ओके, सो यहाँ पे -43 के का डेल्टा था। अब ये इतना बड़ा नेगेटिव डेल्टा क्यों देखने को मिला नेगेटिव साइड? क्योंकि इस कैंडल के अंदर सेलिंग हुआ है। अब इस कैंडल का सेलिंग जोन कौन सा है सबसे ज्यादा, जिसकी वजह से हमें नेगेटिव डेल्टा देखने को मिला? वो है ये 41 के का सेलिंग हुआ है। ओके, अब अगेन इस सेलिंग के बाद हमें इन 4 कैंडल्स के अंदर क्या देखने को मिला, वो ज्यादा जरूरी है। कि ठीक है, एक वॉल्यूम देखने को मिला, सेल साइड देखने को मिला, लेकिन उस सेल वॉल्यूम के बाद क्या हुआ, उस वॉल्यूम के बाद क्या देखने को मिला, दैट्स मैटर। ओके, अभी ये देखो अगेन, पहले तो डेल्टा देख लेते हैं। स्लाइटली नेगेटिव ही था, लेकिन बहुत कम था नेगेटिव भी। इसको ना हम नेगेटिव कह सकते ना ही पॉजिटिव। और मेन चीज क्या थी कि ये जो जोन था सेलिंग का, जहां पे ये 41 के की सेलिंग एक्टिविटी हुई है, इसके बाद ना ही तो प्राइस ऊपर जा रहा, ना ही प्राइस नीचे आ रहा। ओके, सेम वही पे, लाइक कि यहाँ पे कुछ एक बार ट्रांजेक्शन हुआ है, एंड देन स्टॉप एवरीथिंग। 4 कैंडल्स देखो, इस सेलिंग जोन को भी ब्रेक कर दिया अगली कैंडल ने, उससे अगली कैंडल ने भी ब्रेक कर दिया ऊपर की साइड। इसका मतलब ये एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, अब इसको हमने एब्जॉर्ब मार लिया, तो ना ही तो ये अच्छे से ऊपर जा रहा, ठीक है, और ना ही ये नीचे से आ रहा कि हम इसको रेसिस्टेंस माने। सो मतलब सिंपल सा ये निकल के आता है कि यहाँ पे ना ही तो बायर्स उतने इंटरेस्टेड थे, ना ही सेलर्स उतने इंटरेस्टेड थे। जस्ट एक बार वॉल्यूम आया सेल साइड, एंड देन स्टॉप एवरीथिंग। ये भी वो वॉल्यूम है जिसको हम नहीं कह सकते कि कुछ ट्रेंड डिसाइड कर देगा। ओके, लेकिन एक थोड़ा सा और डेल्टा देखने को मिला 28 के नेगेटिव साइड का। कितने बजे? 10:30 बजे। ओके, अब ये नेगेटिव साइड क्यों देखने को मिला? ये इस कैंडल का फुटप्रिंट देखते ही साफ साफ समझ आ रहा है। ये देखो 48 के की सेलिंग एक्टिविटी हुई है यहाँ पे, 48 के की सेलिंग एक्टिविटी यहाँ पे। अभी कुछ कुछ सिनेरियो समझ आ रहा है कि एक बार सेलिंग हुई, प्राइस नीचे नहीं गया, दूसरी बार सेलिंग हुई, प्राइस नीचे नहीं गया, प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में मूव हुआ, और सेम यही सारी चीजें एक स्पॉट के ऊपर हुई। ओके, अभी आगे देखते हैं क्या हुआ।
अगेन वॉल्यूम गायब है। वॉल्यूम मतलब ना ही तो बाइंग साइड ज्यादा है ना ही सेलिंग साइड ज्यादा है, लेकिन स्टिल जो एक ये सपोर्ट जोन था और यहाँ पे कुछ सेलिंग एब्जॉर्प्शन का इंडिकेशन हमें मिला था, प्राइस उसको होल्ड नहीं कर पाया। मतलब आज की एक्सपायरी साइडवेज में हाँ हाँ, एग्जैक्टली साइडवेज भी नहीं। अभी देखते हैं ओके कैसे क्या कुछ हुआ। ओके ये कुछ यहाँ पे स्पोर्ट के ऊपर, स्पोर्ट जोन के ऊपर कुछ सेलिंग एब्जॉर्प्शन का हमें मिला था। ओके अगेन एक और सेलिंग हुआ, इस जोन से थोड़ा सा नीचे हुआ, लेकिन आज ये सेलिंग एब्जॉर्प्शन का जोन उतना होल्ड नहीं कर पाया। होल्ड क्यों नहीं कर पाया, वो एक छोटा सा रीजन अगर हम एंटिसिपेट करें, वो सिंपल सा ये है कि पिछले कुछ दिनों से हम काफी सेलिंग एब्जॉर्प्शन बाइंग एब्जॉर्प्शन के एग्जांपल्स देख रहे हैं। तो सेलिंग एब्जॉर्प्शन के एग्जांपल में हम क्या देखते हैं कि जैसे ये सेलिंग हुआ, एक तो ये सेलिंग जोन ब्रेक हुआ, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि बायर्स अच्छे से एंटर हो जाएं। ओके जैसे यहाँ पे एक बार सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ है, दूसरी बार सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ, तीसरी बार कुछ सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ। ओके एंड देन अगेन कुछ सेलिंग, ये देखो 34K का नेगेटिव डेल्टा है 1150 की कैंडल पे। अगेन यहाँ पे कुछ सेलिंग अगेन देखने को मिला है, ठीक है। मैं इन सभी कैंडल्स को मार्क कर देता हूँ एक बार। एक ये यहाँ पे सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ है, दूसरा यहाँ पे, थर्ड वन इज दिस ओके। सर शुड वी एंटर, ब्रदर यहाँ पे देखो सेलिंग हुआ, ओके प्राइस ने ऊपर की साइड ब्रेक किया, इसका मतलब ये सेलिंग कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो गया। अब ना ही तो ये ऊपर जा रहा ना ही ये नीचे आ रहा कि हम कह सकें कि ये रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, सपोर्ट की तरह। ये देखो 4 कैंडल्स, ठीक है। सो इस जोन ने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया कि हम यहाँ पे कुछ एंटर करने का सोचें। अभी यहाँ पे एक सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ पे दूसरा एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ पे अगेन सेलिंग ने अटेम्प्ट किया, लेकिन एंड में क्या हुआ, यहाँ पे ये जोन आज होल्ड नहीं हुआ। अब ये जोन होल्ड क्यों नहीं हुआ, इसको हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सिंपल सा कि जब भी सेलिंग एब्जॉर्प्शन के बाद, जैसे ये सेलिंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, इस सेलिंग एब्जॉर्प्शन के बाद ये सेलिंग एब्जॉर्प्शन कब माना जाएगा, जैसे ही सेलिंग हुआ, प्राइस यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में मूव ले, सेलिंग हुआ है लेकिन प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में मूव ले। ओके एक चीज होगी जिससे हम पता लगा सकते हैं कि सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ। अब बेस्ट सेटअप क्या है ट्रेड करने का, ओके वो सिंपल सा है कि जब ये यहाँ से रिवर्स ले सेलिंग के बाद, देन अगर कुछ अच्छी क्वांटिटी में अगर हमको बायर्स देखने को मिल जाए, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक तो सेलिंग एब्जॉर्ब हो गया एंड देन एग्रेसिव बायर्स वहां पे स्टेप इन करके, मतलब बायर्स अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं प्राइस को ऊपर लेके जाने में। जैसे कल का एग्जांपल या शायद परसों का ही एग्जांपल था, आप उसको देख सकते हैं। ईएस का भी मैंने एक एग्जांपल दिखाया था, सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ, बायर्स एंटर किए, पुल बैक पे आए एंड देन ये हुआ। ओके आज के दिन क्या देखने को मिला कि स्टिल सेलिंग हो रहा था कुछ जोन्स पे, ठीक है, लेकिन बायर्स कहीं पे भी उतना अच्छी क्वांटिटी में एंटर नहीं किए। ओके और अब ये 12 बजे की जो कैंडल थी, यहाँ पे क्या देखने को मिला, सबसे बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला। ओके -113 के। अब इतना बड़ा नेगेटिव डेल्टा हमें क्यों देखने को मिला, अभी ये देखो ये है वो सेलिंग जोन 91 के एंड 15 के, इस वजह से इतना सेलिंग हुआ इन जोन्स के ऊपर, इस वजह से हमें ये इतना बड़ा नेगेटिव डेल्टा देखने को मिला। अभी अभी तक क्या हो रहा था यहाँ पे, इन जोन्स के ऊपर सेलिंग हो रहा था जो कि सारा का सारा एब्जॉर्ब हो रहा था, ठीक है। अब पुल बैक के टाइम पे हमने क्या देखा है कि जब भी ये लेवल होल्ड हो विदाउट एनी सेलिंग एक्टिविटी, देन वी विल ट्राई टू एंटर। ओके एक बार होल्ड किया, देन अगेन वापस से इस जोन्स के अंदर सेलिंग चल रहा है। अभी यहाँ पे क्या देखने को मिला, जो कि ये जोन सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, इसको एग्रेसिव सेलर्स ने आके अच्छे से ब्रेक किया यहाँ पे 12 बजे की कैंडल में। ओके अभी ये जोन जो कि सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, ठीक यही जोन
एग्रेसिव सेलर्स ने आके अच्छे से ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। अब एक सपोर्ट जो है वो सिंपल सा है, क्या काम करेगा, रेसिस्ट, अगर कोई सपोर्ट ब्रेक हो जाता है देन इट विल गोइंग टू वर्क एज ए रेजिस्टेंस। ओके, अभी ये देखो, ये वो जोन था सबसे ज्यादा सेलिंग जोन, ये वो जोन था जहां पे हम इसको एज ए सपोर्ट कंसीडर कर रहे थे। ओके, इस सपोर्ट को ब्रेक किया, सेलर्स ने अच्छे खासे सेलर्स आए, सबसे बड़ा सेलिंग एक्टिविटी हुआ निफ्टी के अंदर 12 बजे की कैंडल में। ओके, पुल बैक हुआ, अच्छे से होल्ड हुआ, एक डाउन साइड में मूव देखने को मिला, अगेन पुल बैक हुआ, अगेन डाउन साइड मूव, अगेन पुल बैक, अगेन डाउन साइड मूव। अभी एक और चीज है कि यहीं तक ही प्राइस क्यों आया, यहीं तक ही प्राइस क्यों आया, क्योंकि सेम यहीं पे हमें कुछ एक बड़ा सेलिंग देखने को मिला था 50K का। ओके, और ये देखो यहाँ पे एक सेलिंग एब्जॉर्प्शन भी हुआ था। आपने कब ट्रेड लिया से? नहीं भाई, मैं ऑप्शन बाइंग सेलिंग नहीं करता, मैं फ्यूचर्स के अंदर ही ट्रेड करता हूँ। ओके ओके, एक और सेलिंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला यहाँ पे, ठीक है। लेट मी मार्क दैट जोन ऑल्सो। और ये देखो, पुल बैक के टाइम पे एक बाइंग हुई एंड देन ये इस बाइंग के बाद भी इसने ये रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया एंड देन इसने काफी अच्छे से यहाँ पे होल्ड किया एंड देन बायर्स का इंटरेस्ट यहाँ से कंप्लीटली जा चुका था अगर हम डेल्टा को देखें तो। ओके, सो ये था आज का निफ्टी का। उसके बाद निफ्टी के अंदर कोई भी इतना बड़ा वॉल्यूम देखने को नहीं मिला। ओके, क्या सीन था, एक सेलिंग देखने को मिला, ठीक है, लेकिन इस सेलिंग के बाद भी उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिला आगे की कुछ कैंडल्स के अंदर। स्पोर्ट के ऊपर सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ, लेकिन आज के दिन सेलिंग एब्जॉर्प्शन ओके, सो यहाँ पे कुछ सेलिंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला। ओके, लेकिन एंड ऑफ द टाइम 12 बजे के आसपास इसने ये अच्छे से ब्रेकआउट दिया इस सेलिंग जोन्स के ऊपर से। ओके, काफी सारे एग्रेसिव सेलर्स एंटर किए, पुल बैक हुआ एंड देन दो तीन डाउनसाइड मूव इस ठीक इस रेसिस्टेंस के यहाँ से देखने को मिले। निफ्टी में बिड एंड आस्क क्वांटिटी, अभी टाइम ये देखना पड़ेगा 10:30। ओके, हाँ, इसे हम सेलर का एब्जॉर्प्शन कहें या लिमिट, या लिमिट आप ये नहीं पता अभी। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ मार्केट यहाँ पे है, ओके, और मैं यहाँ पे कुछ लिमिट बाइंग एक्टिविटी लगाऊंगा, जैसे मेरा व्यू कंप्लीटली बुलिश है। ओके, मेरा व्यू है कि जैसे ही निफ्टी यहाँ पे आएगा, ओके, यहाँ से इसके बाद ये अप साइड में रिवर्स लेगा। ओके, मैं एक लिमिट बाइंग एक्टिविटी लगाता हूँ कहाँ पे, 2467। ओके, ये 6647 पे। सो आप इस मेरे ऑर्डर से आप क्या समझ पाएंगे कि ये मेरा एसएल है या क्या है? आपको जस्ट वो एक ऑर्डर देखने को मिलेगा। ओके ओके, और दूसरा चीज कि जैसे प्राइस तो यहाँ से इस कैंडल के अंदर यहाँ तक भी गया था और यहाँ तक भी गया है। सो ये 48K की सेलिंग एक्टिविटी यहीं पे क्यों देखने को मिली, बाकी यहाँ पे ये सेलर्स का इतना ज्यादा पोजीशन है, यहाँ पे देखने को क्यों नहीं मिली? सिर्फ 48K की सेलिंग एक्टिविटी यहीं पे देखने को क्यों मिली हमें? ओके, अभी यहीं पे देखने को क्यों मिली, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लिमिट ऑर्डर्स थे, लिमिट बायर्स बैठे हुए थे। ओके, मान लो यहाँ पे थे तकरीबन, कुछ भी एक नंबर ले लेते हैं जो कि 48K से बड़ा हो, जैसे मान लो हमने 50K ले लिया। ओके, 50K के लिमिट बायर्स ठीक इस प्राइस पे बैठे हुए हैं। अभी एग्रेसिव सेलर्स क्या करेंगे?
सेल करके प्राइस को मूव करने का ट्राई करेंगे नीचे की साइड। एग्रेसिव सेलर सिंपल यही करेंगे, लेकिन उनने कितना सेलिंग किया यहाँ पे 48 के की सेलिंग की, और उस सेलिंग के बाद भी ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे लिमिट बायर काफी पावरफुल है। सपोज दैट कि आपके पास पैसे ही उतने हैं कि आप 48 के 48,000 क्वांटिटी आप सेल कर सकते हैं। ओके, आपके पास उतने ही पैसे हैं जितनी कि आप 48,000 के आसपास क्वांटिटी सेल कर सकते हैं। ओके, आपने 48 के 48,000 की क्वांटिटी यहाँ पे सेल कर दी, और उस सेलिंग के बाद भी प्राइस इससे नीचे मूव नहीं हुआ, जस्ट एक पिन टू पिन प्राइस आपके ऑर्डर सारे एग्जीक्यूट हुए एंड देन इट रिवर्स। सो इसका मतलब क्या है कि आपने जो 48,000 ऑर्डर्स को पंच किए हैं एग्रेसिव सेलिंग के साथ, मार्केट ऑर्डर के साथ सेल किए हैं, आपसे भी कोई बड़ा खिलाड़ी था, ओके, जिसके यहाँ पे जितना आपने सेल किया उससे ज्यादा ऑर्डर थे। अब वो कितने भी हो सकते हैं 48 से ऊपर, ओके, 50,000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने जो 48,000 क्वांटिटी सेल की, वो सारी की सारी सेलिंग यहाँ पे किसने एब्जॉर्ब कर लिया? लिमिट बायर ने वो सारी की सारी क्वांटिटी यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, कोई भी एक ये एक सिंपल सा सड़क है, ये एक दीवार है, ओके, आपको ये सड़क पार करके आपको यहाँ पे जाना है। ओके, आपके बीच में दीवार है, आपने हथौड़े से इस दीवार पे काफी मारा, ओके, लेकिन स्टिल ये दीवार नहीं टूटा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जितनी भी इस दीवार पे हथौड़े चलाए हैं, ये दीवार सारा का सारा एब्जॉर्ब कर गया है यहाँ पे। ओके, ये दीवार कौन है? ये लिमिट बायर, समझिए। ओके, और आप कंटिन्यू यहाँ पे सेल किए जा रहे हैं, सेल किए जा रहे हैं, लेकिन वो जो लिमिट बायर्स का जो दीवार है, जितने सारे ऑर्डर्स हैं, ओके, जब तक ये सारे ऑर्डर्स पंच नहीं होंगे लिमिट बायर के, आप आगे नहीं जा सकते। ओके, और दूसरा आप ये मान लीजिए कि सेम यही सड़क है, ओके, लिमिट बायर्स हैं यहाँ पे, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। एक बार के लिए लिमिट बायर भूल जाते हैं, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। ओके, आपने हथौड़े से 2-3 बार ही हिट किया एंड देन ये दीवार टूट गया। तो इसका मतलब क्या, आप इजीली यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। सो अगर यहाँ पे होता 30K के ऑर्डर्स लिमिट बायर्स के, ओके, और यहाँ पे 48K के सेलिंग होती, देन ये 30K का सेलिंग होता है एंड देन प्राइस कंटिन्यू। अभी यहाँ पे ऑर्डर ही 48K से ज्यादा है, और एग्रेसिव सेलर सिर्फ इतना ही पुश कर पाए। इससे बड़े बड़े ऑर्डर्स से यहाँ पे जो बैठे हुए थे, जिन्होंने ये सारा का सारा सेलिंग एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे एक दीवार, ठीक है, आप जितना भी मारोगे वो नहीं टूटेगा क्योंकि वो आपसे ज्यादा पावरफुल है। अभी एग्रेसिव सेलर यहाँ पे कितना भी सेल करें, ओके, अगर आपसे ज्यादा पावरफुल बैठे हुए हैं लोग, तो आप नहीं प्राइस को मूव कर पाओगे। उन्होंने एक अटेम्प्ट लिया यहाँ पे सेलर्स ने प्राइस को नीचे लेके जाने का, ये दूसरा अटेम्प्ट लिया, ये थर्ड अटेम्प्ट लिया, और चौथी बार में ये देखो इतना सारा सेलिंग और करना पड़ा उन्हें, तब जाके ये प्राइस मूव हुआ। कितना सेलिंग? 91K के आसपास का, ठीक है। एक सिंपल सा चीज कि हम ये लेफ्ट साइड को सेलर ही क्यों बोलते हैं, मतलब सेलर बोलते हैं तो इस सेलर का पूरा कहानी क्या है? आप सिंपल सा, आप एक कोई भी एक प्रॉपर्टी है आपकी, ओके, कोई भी एक फ्लैट है, आप उसको सेल करना चाहते हैं, ओके, आप उसको सेल करना, तो आपको अगर बायर देखने को नहीं मिलेगा तो क्या आप उसको सेल कर पाओगे? अगर आपको बायर ही नहीं मिल रहा, तो क्या आप उसको सेल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आप उसको सेल तभी कर पाओगे जब आपको एक बायर देखने को मिलेगा, ओके, जब आपका कनेक्शन एक बायर के साथ होगा, तभी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेल हुआ है। और अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसने बाय किया है, ओके, सेम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या है? एग्रेसिव सेलर हैं एंड लिमिट बायर्स हैं, दैट्स इट, ओके। सो ये है पूरा लेफ्ट साइड का सिनेरियो कि अगर सेलिंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला तो हु इज गोइंग टू एब्जॉर्ब? राइट साइड डीपी, सॉरी समझ नहीं आया। राइट साइड पे अगर अभी सिंपल राइट साइड पे जैसे, ओके, ये लेते हैं,
375 ऑर्डर्स हैं, ओके, ऑन द बाय साइड। अभी मान लो आपको कोई भी एक प्रॉपर्टी बाय करनी है, नहीं जैसे ओके, आपको अपना इतना क्वांटिटी बेचना है, अभी आपने खरीद रखा है, जस्ट एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड। ओके, सो अभी राइट साइड का हम देख रहे थे कि अगर किसी ने 375 क्वांटिटी अगर किसी ने बाय किया है, ओके, अगर किसी ने इतना क्वांटिटी 375 क्वांटिटी अगर किसी ने बाय किया है, तो किसी ना किसी ने बेचा भी होगा। अगर कोई बेचने को ही तैयार नहीं है तो बाय कौन करेगा? ठीक है, सो ऑन द राइट साइड वी हैव एग्रेसिव बायर्स एंड लिमिट सेलर्स। ओके, तो राइट साइड को हम बायर्स ही क्यों बोलते हैं? ठीक है, जैसे कोई भी जैसे सेम यहीं पे ले लेते ना, जैसे अभी निफ्टी यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज हुआ। ओके, अभी एज्यूम करते हैं कि मार्केट अभी ओपन है, यहाँ पे काफी सारे लिमिट सेलर्स होंगे, लिमिट सेलर से भरा पड़ा होगा। ओके, सिर्फ ऊपर की साइड का प्रोबेबिलिटी लेते हैं, काफी सारे लिमिट सेलर्स होंगे, भरे पड़े होंगे। अगर कोई मार्केट बाय के साथ पंच ही नहीं करेगा, सो प्राइस मूव ही नहीं होगा ऊपर की साइड। ओके, ये सारे लिमिट सेलर हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे किसी ने 10 क्वांटिटी है, किसी की 20 है, किसी की 30 है, एंड अगेन 10। सो अगर मैं 50 क्वांटिटी पंच कर देता हूँ मार्केट ऑर्डर के साथ, बाय पे क्लिक कर देता हूँ, ओके, जैसे हम बाय सेल करते हैं ना, तो वहां पे आता है ना लिमिट बाय लिमिट सेल, मार्केट बाय मार्केट सेल। सो अगर मैं 50 क्वांटिटी पंच कर देता हूँ मार्केट बाय के साथ अपने ब्रोकर अकाउंट पे, तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले मैं ये 10 क्वांटिटी बाय करूंगा, बाय होंगी, देन ये 20 क्वांटिटी बाय होंगी, एंड देन 20 क्वांटिटी इसमें से बाय होंगी। मान लो ये 50 की जगह मान लो मैंने 60 ऑर्डर पंच किए। ओके, सो क्या होगा? यहाँ पे था, प्राइस कहाँ पे पहुंच जाएगा? यहाँ पे, ये 30 तक। और अगर मैं मान लो मैं हूं, या पूरे इंडिया के अंदर कोई भी अगर मार्केट बाय पंच ही नहीं करेगा, ठीक है, सो ये ऑर्डर्स ऐसे ही पड़े रहेंगे और प्राइस ऊपर जाएगा ही नहीं। सो किसने एग्रेशन दिखाया? हु इज मोर पावरफुल, है ना? एग्रेशन किसने दिखाया? मार्केट को मूव करने का ट्राई किसने किया? किसने चाहा मार्केट को मूव करने का? एग्रेसिव बायर ने चाहा। ओके, सो दैट्स व्हाई वी कॉल कि राइट साइड पे हमारे पास बायर हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमें ये भी पता है कि लिमिट सेलर का बिका भी है। ओके, क्योंकि एक बाय और सेल का ट्रांजैक्शन तभी होगा अगर हम बोलेंगे किसी ने बाय किया या किसी ने सेल किया है, सो सेलर को बायर मिला होगा या बायर को सेलर मिला होगा, तब जाके एक ट्रांजैक्शन पूरा हुआ होगा। ये तो है नहीं हम ये बोलेंगे कि किसी ने सेल किया है। ओके, सो इसका उसका सेल का ट्रांजैक्शन कब पूरा होगा? जब किसी ने बाय किया होगा। ठीक है, सेम ऑन द लेफ्ट साइड है, प्राइस यहाँ पे है, यहाँ पे काफी सारे लिमिट बायर्स बैठे हुए हैं। ओके, 10, 20, 30, 40। अब अगर कोई एग्रेसिव सेलिंग नहीं करेगा, मार्केट ऑर्डर के साथ सेल नहीं करेगा, तो प्राइस क्या होगा? प्राइस यहीं पे रहेगा। ओके, ये लिमिट चाहे पूरा दिन हो, अगर कोई सेल ही नहीं करेगा मार्केट ऑर्डर के साथ, तो वो यहीं पे रहेगा। ओके, ऑल दीज आर लिमिट ऑर्डर ब्रदर। जैसे ही मार्केट यहाँ पे है, तो नीचे की साइड काफी सारे लिमिट बायर्स हैं और ऊपर की साइड काफी सारे लिमिट सेलर्स बने पड़े। ओके, नीचे की साइड लिमिट सेलर्स हैं, सॉरी लिमिट बायर्स हैं, और ऊपर की साइड लिमिट सेलर्स भरे पड़े हैं।
अभी जैसे ही कोई एग्रेसिव सेलिंग करेगा, मार्केट ऑर्डर के साथ अपनी सेलिंग कंटिन्यू करेगा, देन ये क्वांटिटी वो फिल करता जाएगा। ओके, और जैसे ही कोई एग्रेसिव बाइंग करेगा, मार्केट ऑर्डर के साथ बाइंग स्टार्ट करेगा, वो प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट करता जाएगा। ओके